भाई बहनों, कलीसिया के प्रभु के सेवक सेविकागण, प्रभु के विश्वासियों, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। और हम जानते कि ये वक्त, ये समय प्रभु ने हमें दिया है कि हम उसके वचन का अध्ययन कर सकें। जैसे मैंने पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ और हमेशा कहता हूँ कि जो समय प्रभु हमें देता है उसके वचन का अध्ययन करने के लिए, वो हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण समय है। डियर फ्रेंड्स, the servants of God, the saints of God, people of His choice, I always say that the time God has given to us for studying His Word is the best part of our entire life. Because this is the time where we can study His Word, try to understand the meaning of this Word, and able to follow it up. Our life is so temporal in this world that nothing can be considered as permanent except our relation with Jesus Christ and our relation with this Word and our meditation that we have in and through this Word. All the thing that we have enjoy is temporary except this Word. And I know that many of us who spent a lot of time in our lives, spent a lot of hours reading, trying to understand the Word of God is the best part that we have chosen. Even Jesus said to Martha about Mary, Martha, Martha, you think and plan for many things, but I tell you that Mary has chosen the right part for her life, and the portion Mary has chosen will not be taken away. And I think this is exactly the same thing in our lives also. The believers in Thessalonica, they did the same thing. They were always better, and also people at Berea. They studied the Word of God, and they knew that all that we are studying today will remain with us now in this world and beyond the horizon of this life also. हम इस बात को जानते हैं मित्रों कि जो वचन जिसका अध्ययन हम करते हैं वो हमारे साथ इस संसार में इसके बाद भी बना रहेगा। इसलिए बड़े ध्यान के साथ, बड़े ध्यान से इन वचनों का हम अध्ययन करते हैं, और मैं चाहता हूं कि आप इन्हें अपने जीवन के अंदर रखें और इनके अनुसार चलने का प्रयत्न करें। Dear friends, I want all of us, young and old, each parent, especially our youth and grown-up people, let us spare some time for the Word of God, because this is our life. Nobody will take it away from you if you are spending this time. Not only study the Word of God, but please write down the notes, some of the notes that you may be having. It will be there with you for eternity in your life. Some of the verses that you memorize, it will be there in your mind, in your heart all the time, and that will vindicate your life in the days of trouble and crisis and atrocities and persecution. So let us be sincere as we study the Word, dear friends, and don't miss this time. I am also grateful to the Lord for some of the people who are taking Bible study, and may God bless them, and they may continue to grow in the Lord. But one thing that I request all of you with folded hands, that remember you are a member of Apostle Methodist Church. You should be like light, like star, so that you may shine for the glory of God here in the days to come. Now, yesterday, कल हमने देखा प्रभु के वचन को, और उससे आगे देखेंगे, लेकिन इसके पहले हम आइए प्रार्थना करें। Let us pray. We thank you, Lord, for the word that's going to be meditated now, Lord, under your grace and mercy. And we pray, God, that prepare hearts and minds so that we may meditate and think about it, Lord, and use it for the growth of our Christian life. Give me your wisdom and knowledge, so with all people who are participating. In Jesus' precious name I pray. Amen. मित्रों, कल हमने
उन हथियारों के बारे में देखा था जिससे हमें अपने आप को लैस करने की आवश्यकता है। हमने देखा था कि हम अपने जीवन के अंदर इन 7 हथियार जिनका वर्णन किया गया, यानी क्या, सत्य से अपनी कमर पर कसकर, यहाँ स्पष्ट लिखा है हैविंग फास्टेंड ऑन द बेल्ट ऑफ ट्रूथ। फिर आगे लिखा है धार्मिकता की झिलम पहनकर, एंड हैविंग पुट ऑन द ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस। फिर लिखा है और पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, एंड एस शूज फॉर योर फीट हैविंग पुट ऑन द रेडीनेस गिवन बाय द गॉस्पेल ऑफ पीस। और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहने की आवश्यकता है ताकि हम दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस टेक अप द शील्ड ऑफ फेथ with which you can extinguish all the flaming darts of the devil one. And then we saw उद्धार का टोप, the helmet of salvation, आत्मा की तलवार, the sword of the spirit which is the word of God, जो ईश्वर का वचन है, और आखिरी में लिखा है प्रार्थना, prayer. So these are 7-fold और 7 आर्म्स दैट वी नीड टू गर्ड आवरसेल्फ। इनसे हमें अपने आप को रक्षा करने की आवश्यकता, हमें इन हथियारों को लेने की आवश्यकता है मित्रों, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, ताकि हमारा आत्मिक जीवन सुरक्षित रहे और हम प्रभु बढ़ते चले जाएं। यहाँ पर पौलुस ये कहता है कि मेरे लिए भी प्रार्थना। पहली बात वो कहता है कि मेरे लिए विनती करो, और इसलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो, और मेरे लिए भी प्रार्थना क्या करो। ये पहली बात हम देखते हैं। पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना क्या करो। इसका मतलब ये है कि प्रार्थना ना केवल असिद्ध लोगों के लिए, लेकिन जो प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। और यहाँ स्पष्ट लिखा है कि इसलिए प्रार्थना करें ताकि उनको बोलते समय प्रबल वचन दिया जाए। प्रबल वचन, व्हाट इज द वर्ड दैट इज वेरी 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 बोल्ड, मेकिंग सप्लिकेशन फॉर ऑल द सेंट्स एंड फॉर मी ऑल्सो, दैट वर्ड्स मे बी गिवन टू मी इन ओपनिंग माई माउथ बोल्डली टू प्रोक्लेम द मिस्ट्री ऑफ द गॉस्पेल। क्यों प्रार्थना करने की आवश्यकता? अब यहाँ पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो, संतों के लिए प्रार्थना करो। मित्रों, यहाँ पर एक चुनौती है आप और मेरे लिए कि हमें जो प्रार्थना करने की आज्ञा दी है वो विश्वासियों के लिए करने की आवश्यकता है, पासबानों के लिए करने की आवश्यकता है, प्रचारकों के लिए करने की आवश्यकता है, मिशनरीज के लिए करने की आवश्यकता है, बाइबल टीचर्स के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। कई बार हम ये कहते हैं कि भाई इन्हें वो नहीं आता, ये नहीं आता, या ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, पर क्या हमने चुपके से अपने घुटने में होकर इनके लिए प्रार्थना करी है? उनेसिमुस परमेश्वर का सेवक नहीं होता अगर पौलुस उसके लिए प्रार्थना नहीं करता। अगर पौलुस उसके लिए प्रार्थना नहीं करता उनेसिमुस के लिए, तो वो परमेश्वर का सेवक नहीं बनता, क्योंकि वो एक ऐसा जवान था जिसके अंदर दुनिया पाई गई, दुनिया की लालच पाई गई, और वो उसमें अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन एक वक्त आया जब पौलुस ने उससे एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जिसका उसने नुकसान किया था। अगर आप बाइबल में इसको देखें तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट रूप से पाएंगे, यहाँ पर स्पष्ट रूप से पाएंगे किस प्रकार से यहाँ पर पौलुस ने उसके बारे में लिखा। फिलेमोन का पत्र, फिलेमोन का जो पत्र है वो उनेसिमुस के बारे में लिखा गया। उनेसिमुस के बारे में पौलुस की ओर से यीशु मसीह का कैदी है, और भाई तिमोथियस की ओर से हमारे प्रिय सहकर्मी फिलेमोन, और बहन अफिया, और हमारे साथी योद्धा और खीपुस के और फिलेमोन के घर की कलीसिया के नाम। अब यहाँ पर एक ऐसा नाम है जो उनेसिमुस का नाम है। उनेसिमुस का नाम है। पौलुस कहता है कि पहले वो किसी काम का नहीं था, पहले वो किसी काम का नहीं था, ठीक है, लेकिन अब बड़े काम का हो गया, बड़े काम का हो गया। अब पौलुस कहता है कि फिलेमोन ने इसको संभाला, हालांकि
उनेसिमुस ने तो फिलेमोन का भी नुकसान करा था। अगर आप पूरी इस पत्री को देखें तो वो कहता है कि ये व्यक्ति पहले किसी काम का नहीं था, पर अब बड़े काम का हो गया। और इसको अगर हम गहराई से देखें तो हम इन वचनों को यहाँ पर समझ पाएंगे, जान पाएंगे। वो 10 पद में कहता है उनेसिमुस की पत्री में, और मैं अपने बच्चे उनेसिमुस के लिए जो मुझसे मेरी कैद में जन्मा है तुझसे विनती करता, फिलेमोन से विनती करता कि इसको तू संभाल, हाँ ऐसे संभाल। वह तो पहले तेरे और मेरे कुछ काम का नहीं था, पर अब तेरे और मेरे दोनों के बड़े काम का है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में परिवर्तन हो गया और वो प्रचारक बन गया उनेसिमुस। इसी प्रकार से पौलुस यहाँ पर कहता है कि इसके पीछे जो कारण है वह है प्रार्थना। जब हम संतों के लिए प्रार्थना करते हैं तो प्रभु उन्हें सामर्थ्यशाली बनाता है, अपने वचन से परिपूर्ण करता है। तो सामर्थ्य या विश्वास का वचन है, अपने कार्य के लिए उनको तैयार करता है। अब यह सवाल उठता है कि हम जो कलीसिया के लोग हैं, द क्वेश्चन arises here that we who are in the church, no matter for another 50 years, sometime more or less, or 25 years, or 40 years, or 10 years, or 15 years, do we pray for our people who are in leadership? I know that many of you pray, but I think we should all together pray. All together pray that God, you give them your word whenever it is important. And also we need to pray for them that the word may be given to them in opening their mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel. And how many times we have done it? Or we only talk about the other side of the coin, that is negative. Since they are, we perceive that they are not able to speak Polish language, so they are useless. This word useless is a terrible word. Have you thought about that? Because if God were to give us judgment, and if He were not having patience for us, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर अगर हमें अपना न्याय उसको देने को हो और हमारे लिए धीरज ना धरे तो हम कुछ नहीं होगा। परमेश्वर इतना ही कह दे कि लेट मी वेट फॉर हिम सम टाइम, और आगे हम पर ध्यान ना दें तो हमारी स्थिति क्या होगी। हम बिना सोचे समझे परमेश्वर के दासों को जो उसके द्वारा उपयोग में लाए जा रहे हैं, कई सालों से उनके द्वारा कई सैकड़ों लोगों ने प्रभु को जाना, हम ये थोड़ी कह सकते कि भाई वो किसी काम के नहीं है, दे आर यूजलेस। लेकिन ऐसा होता है, हमारे बीच में ऐसा होता है, हमारे समाज में होता है। हम उन्हें यूजलेस कहते हैं जो हमारी बातों को नहीं मानते, हर बात में थोड़ी बात को मानते, सारी बातें नहीं मानते, अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं और उसके लिए सब लोग उनके पीछे चलते हैं, 2-4 को छोड़कर। तो हम सोचते हैं कि वो किसी काम के नहीं है। ऐसा नहीं है। हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना में वो ताकत है, वो शक्ति है जो अयोग्य व्यक्ति को योग्य बना देता है। क्या हम ऐसा करते हैं? और यहाँ पर पौलुस कहता, अपने लिए कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए प्रार्थना करो। पौलुस तो प्रभु का एक पहुंचा हुआ दास था, प्रभु ने उसे बहुत सामर्थ्य दी और उसको उसने अपने प्रकाशन से परिपूर्ण कर दिया। पर पौलुस कहता, मुझे भी तुम्हारी प्रार्थना की आवश्यकता। What does it mean? Why Paul said that I need your prayer? Because prayer is the support. हम पढ़ते हैं कि जब लड़ाई छिड़ गई, जब इस्राएल लोग जा रहे थे, अमालेकियों ने उन पर हमला करा, तो लिखा है कि मूसा के दोनों हाथों को पकड़ा गया और यीशु और हम पढ़ते हैं दूसरा व्यक्ति उसके हाथों को पकड़े हुए थे, हारून। और जब तक उसके हाथों उन्हें पकड़ा रखा, उसका हाथ ऊपर रहे, इस्राएल लोग जय प्राप्त करते थे। प्रार्थना करने का मतलब ये कि हम किसी व्यक्ति को पकड़े रहते हैं ताकि वो प्रभु के लिए कार्य करता जाए। कम इस कार्य को ना करके उनको नीचे गिराना चाहते हैं। नुकसान किसका कर रहे हैं? पूरे समाज का, पूरे लोग का, पूरे
जाति का, इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। संत पौलुस कहता है कि मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे परमेश्वर के वचन को प्रचार करने की सामर्थ दी जाए और वचन प्रबलता के साथ दिया जाए। मैं साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार का भेद बता सकूं। ये 2-3 कारण है जिसके लिए पौलुस के लिए उसने कहा, मेरे लिए कलीसिया को कहा, खास करके इफिसुस के लोग थे कि मेरे लिए प्रार्थना करो। नंबर 1, मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। नंबर 1, वचन में प्रबलता कब आती है? जब परमेश्वर के आत्मा का अभिषेक होता है तब वचन में प्रबलता आती है। डियर फ्रेंड्स, वी गेट द वर्ड ऑफ गॉड विद ऑल पावर, and also for me that words may be given to me in opening my mouth boldly, very boldly. Now here this Bible study I am going very slow. Why? Because so that we may understand. You may continue to study the meaning of these words word by word. That is I am going very slow, and there is nothing emotional in the Bible study. I have always taken time to slowly explain to you. But this is also with a boldness, because this is the word of God, no compromise. And many times I have said things that can offend you. कई बार मैं ऐसी बातें बोलता हूँ जिससे आपको बुरा लगता होगा, आप ऑफेंडेड होते हैं कि पैसा भी को बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप वचन के गहराई में जाएं तो ये ईश्वर का वचन है। ये जो नबी लोग पुराने ज़माने में थे, जब वो राजा के सामने खड़े होते थे, ये किसी गणमान्य व्यक्ति के सामने खड़े होते थे, तो क्या कहते थे? परमेश्वर ने कहा, thus says the Lord। जो कुछ ईश्वर ने बोला वो बोल देते थे। यिर्मयाह को कई बार उसके लिए सजा मिल गई, दुख उठाना पड़ा, लेकिन उसने कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा। और हम जो प्रभु के सेवक हैं, हम जो प्रभु के दर ठहरा गए हैं, कभी भी इस बात में वचन के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, समझौता नहीं करना चाहते। जो लिखा है वो बताने की आवश्यकता, ताकि उसमें हम अपने आप को देखें और दूसरे भी उसके रोशनी में अपने आप को देख सकें, क्योंकि ये वो रोशनी है, वो ज्योति है जिसमें हमारा अंधकार भाग जाता है। हम अंधकार से अलग हो जाते हैं और परमेश्वर की ज्योति में चलने लगते हैं। तो पौलुस ने कहा कि हमारे लिए, मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मुझे बोलते समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए। दूसरी बात कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, साहस के साथ, सो दैट आई मे एक्सप्लेन टू द पीपल with all courage the mysteries of the gospel of Jesus Christ. And that will happen, that happens when there are people praying for his people. एक बार डॉक्टर बिली ग्राहम जब इंग्लैंड में लंदन क्रूसेड में प्रचार करने के लिए गए, उसके पहले उन्होंने कई लोगों को भेजा, BGA के डॉक्टर बिली ग्राहम इवेंजलिस्टिक एसोसिएशन लोगों को भेजा, और उन्हें कह दिया था कि तुम जगह जगह जाकर लंदन में प्रेयर ग्रुप बनाओ। जब 6-7 महीने तक लोगों ने प्रार्थनाएं करी और तब जब क्रूसेड शुरू हुआ तो डॉक्टर बिली ग्राहम ने कहा कि मेरे प्रचार के कार्य में 3 सीक्रेट है। देयर आर 3 सीक्रेट्स इन माय मिनिस्ट्री ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ द गॉस्पेल। पहली बात उन्होंने कहा प्रेयर। नंबर 1 ही सेड प्रेयर, सो पीपल एक्सपेक्टेड दैट सेकंड एंड थर्ड विल समथिंग एल्स। नंबर 2 उन्होंने कहा प्रेयर, उन्होंने कहा कि दूसरा जो सीक्रेट वो भी प्रार्थना है। तब लोगों ने सोचा कि तीसरा कुछ और होगा, तब उन्होंने धीमे से कहा कि तीसरी भी प्रार्थना, थर्ड इज ऑल्सो प्रेयर। प्रेयर 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 सपोर्ट। डियर फ्रेंड्स of Apostle Methodist Church, if you are anticipating the church growth in and through this church, if you are anticipating revival in and through this church, we need to kneel down and start praying. I know that many of you are doing that. आप प्रार्थना कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो कार्य आज हम देख रहे हैं, जो जयवंत होने की बात प्रभु हमसे करता है, उसके पीछे प्रार्थना ही है। जब हम आए थे 15 महीने हो गए और आज लोग प्रार्थना करने लगे क्योंकि वो आशीष प्राप्त कर रहे हैं। पीपल आर बीइंग ब्लेस्ड टुडे बाय द वर्ड ऑफ गॉड, एंड दिस पेंडेमिक हैज क्रिएटेड आवर हार्ट, ओपनड आवर हार्ट टू स्टडी द वर्ड ऑफ गॉड, जो शायद पहले हम नहीं कर पाते थे, क्योंकि संडे को चर्च में आते थे, फिर वीकडे कभी बाइबल स्टडी हो गई, महीने में एक बार। ये रोज ही हो रही है, और करीब ये 107 या 108 में बाइबल स्टडी है जो हम रेगुलर कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे जब तक कि ये पेंडेमिक समाप्त ना हो जाए
और चर्चेस खोल ना दी जाए आराधना के लिए, और तब भी करते रहेंगे। आप देखिएगा इससे बड़ा कार्य होगा, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, मेरे जीवन में कार्य करेगा। सो प्रेयर फॉर सेंट पॉल सो दैट ही में स्पीक, he may proclaim the gospel and he may proclaim boldly the mysteries of the gospel। दो मुख्य कारण है जिसलिए पौलुस ने कहा कि मेरे लिए प्रार्थना करो, और ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने कलीसिया के लिए, अपने अगुवाओं के लिए, अपने पासबानों के लिए आप ऐसा ही करना शुरू कर दें। आप देखिएगा एक बहुत बड़ा कार्य कलीसिया के द्वारा होगा। इस कलीसिया को बहुत आगे चलना है, सारी बातों को हम रिव्यू कर रहे हैं, और सारी बातों में आप देखेंगे अगले 5 साल के अंदर एक बड़ा कार्य आप इस आसपास देखेंगे अपने कलीसिया के, ईमानदारी से प्रभु के भय में होकर के, उसके डर में होकर के उसमें बढ़ते चले जाएं। दूसरी बात यहाँ लिखा है जिसके लिए हम पढ़ते हैं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ, और यहाँ भी कि मैं उसके विषय में कुछ मुझे चाहिए साहस से बोलूँ, for which I am an ambassador in chains, that I may declare in boldly as I ought to speak। अब पौलुस को जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत कहा गया, तो अपने लिए कहता, क्यों? क्योंकि जहां भी हो गया उसको कई जगह पर उसको चेन से जकड़ लिया गया। जब वो फिलिपी के जेल खाने में था तो उसके पैरों को ठोक दिया गया था काट में, और जब अन्य जगहों में हो गया तो उसके हाथ और पैरों में बेड़ियां लगाए जाते थे। यहाँ तक कि जब वो रोम में जा रहा था, चूंकि कैदी था, उसके हाथों या पैर में कहीं ना कहीं बेड़ी लगी हुई थी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये होता था। इसलिए पौलुस ने अपने बारे में कहना शुरू कर दिया कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार के भेद के लिए जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। अब यहाँ पर वो इसके बारे में थोड़ा सा आगे कहता है, मैं चाहूँगा कि हम उसके बारे में जो हिदायत उसने दी तीमुथियुस को उसके बारे में पढ़ लें। जो सिमिलर थॉट यहाँ पर, हालांकि जंजीर की बात यहाँ नहीं आई, लेकिन वही चीज़ें हैं। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय पहले पस 2 तीमुथियुस 4 अध्याय पहले पस हम देखें, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह को गवाह करके आई चार्ज यू इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड जीसस क्राइस्ट, जो जीवते और मरे हुओं का न्याय करेगा और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, who is to judge the living and the dead by his appearing and his kingdom। तो वचन का प्रचार कर, असमय असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke and exhort with complete patience and teaching। क्योंकि ऐसे समय आएगा जब लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे और कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे। For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions। यही तो हम देखते हैं, जब सत्य का प्रचार किया जाता है, जब वचन का प्रचार किया जाता है, तो कई ऐसे हैं जिनको अच्छा लगता है। हाँ, अरे साहब वही प्रचार करो जो अच्छा लगे सुनने में, अच्छा लगे सुनने में। हाँ, लेकिन वचन का प्रचार आपको और मेरे सुनने में अच्छा लगे इसलिए नहीं किया जाता। वचन का प्रचार इसलिए किया जाता है कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, वचन में क्या लिखा है। अगर हम सुनने वाले बनते हैं तो प्रभु हमें आशीष देता है। अभी तो प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य के 1, 2 और 3 अध्याय में कि जिनके कान वो सुन ले। उसने 7 कलीसियाओं के बारे में बहुत सी बातें बताई, और फिर वो कहता है कि हर इसके बारे में कहता है कि जिसके कान वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। मतलब क्या है? ये वचन जो हमें बताता है इसमें उसकी सच्चाई है और हमारे आत्मा के लिए जरूरी है। अगर हम उस पर ध्यान देते हैं और पश्चाताप करते हैं तो ये हो नहीं सकता कि हम आशीष ना प्राप्त करें। To see that his kingdom extends in and through our life. Now then again here we read what he says here. The next thing he says, third one,
तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वासी हुए सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति देगा। अब ये व्यक्ति नाम और एक जगह आया है, अगर आप देखें मेरे साथ वहाँ पर, मैं चाहूँगा आप देख ले, तुखिकुस का नाम आया है जहाँ पौलुस इसके बारे में लिखता है। ये देखिए यहाँ पर हम पाते हैं तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय उसके 12 पद से उसके 14 पद तक इस व्यक्ति का नाम आया। यहाँ पर देखिए तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय 12 से 24 लिखा है यहाँ पर, जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं, जो मेरे पास निकोपुलिस आने का प्रयत्न करना, क्योंकि मैंने वहाँ जाड़ा काटने का निश्चय किया। जेनास व्यवस्थापक अपोलोस को यत्न करके आगे पहुँचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु घटी ना होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे लोगों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल ना रहे। एंड let our people learn to devote themselves to good works so as to help seasons of urgent need and not to be unfruitful। अब यहाँ पौलुस क्या कहता है, इसी का वर्णन यहाँ पर करता है। ये जो व्यक्ति है और इसी का नाम यहाँ पर आया है, ये देखिए लिखा है तुखिकुस। पौलुस उन्हें अपने पास बुला रहा है और यहाँ पौलुस उनके लिए क्या कहता है कि तुखिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा। क्या बताएगा कि पौलुस की क्या स्थिति है। मित्रों, प्रभु के दास पौलुस के साथ ये बना रहा, उसके साथ तीमुथियुस बना रहा, तीतुस बना रहा, और आगे चल के कई और लोगों का नाम बाइबल में लिखा है जो उनके साथ बने रहे। पौलुस कहता है कि मैं इनके प्रति प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और पौलुस कहता है कि जब उसने कहा मेरे लिए प्रार्थना कर, तो उसने ये भी कहा कि उनके लिए प्रार्थना कर जो मेरे साथ रहते हैं। मित्रों, जो इंटरसेशन की सेवा है वो ना केवल एक व्यक्ति के लिए, उनके साथ उन लोगों के लिए भी है जो उनके साथ कार्य करते हैं, राज्य के बढ़ोतरी के कार्य करते हैं, सुसमाचार के प्रचार के लिए कार्य करते हैं। हमें उन लोगों के लिए प्रभु का धन्यवाद करना, उन लोगों के लिए प्रभु की स्तुति करनी है। मित्रों, हमें अपने जीवन के अंदर इस बात पर ध्यान देना। और आखिरी बात है 23-24 पद, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। अब ये संत पौलुस यहाँ पर इस पत्री का अंत करता है, बहुत ही पोलाइट वे में करता है। क्या बोलता है वो? पिता परमेश्वर या परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें भाइयों को शांति। ये शांति जो पौलुस बांटता है, उसका अपनी शांति उसके नहीं थी, शांति थी परमेश्वर की शांति। और यीशु मसीह ने शांति के लिए बोला है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 26-27 पद में वो क्या कहता है कि मैं अपनी शांति तुम्हें दे जाता हूँ। आई गिव यू माई पीस नॉट एज द वर्ल्ड गिवेथ। ये वो शांति है जो परमेश्वर उन सबको देता है जो उसके प्रकट होने को, उसके पुत्र के प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। द पीस दैट जीसस गिव्स अस इज हिज ओन पीस। The meaning of that peace is He abides in us, He dwells in us. And when He is in us, we enjoy that peace all the time. In the time of crisis, in the time of sickness, in the time of diverse situation, in any time, if you follow Jesus, we enjoy that peace. And Paul is giving that peace to his readers and people in Ephesus. And then he says here, भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। Peace be to you, brothers, and love with faith from God the Father and the Jesus Christ. 3 things is giving. Number 1, peace, love, and faith. Peace, love, and faith. शांति यीशु मसीह को जानने के द्वारा, प्रेम उसको पहचानने के द्वारा, और विश्वास उस पर आधारित होने के द्वारा। ये तीनों साथ साथ चलते मसीह सेवा के अंदर। When you serve the Lord, when I serve the Lord, His peace is there,
His faith is there and His love is there. Because of His peace that we have, we grow in the faith, and because we grow in the faith, we share His love with the people. हम दूसरों के साथ उसके प्रेम को बांटते हैं। मित्रों, इस बात को समझने और जानने की आवश्यकता है। फिर यहाँ पर लिखा है, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में से सच्चा प्रेम रखते हैं उन सब पर अनुग्रह होता रहे। अगर हम सचमुच में उसके प्रेम को बांटने वाले हैं तो हम उसके अनुग्रह में बने रहेंगे। His grace will overshadow us all the time, all the time. We'll never be unprotected. We'll be protected always by His grace. And it happens to His servants more. Because we face situation, diverse situation, criticism and other things. But when we trust God, He overshadows us with His grace. And when we are under His grace, everything become possible. हर चीज संभव हो जाती है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और हमारे जीवनों को ऐसा ही बनाए। आइए हम प्रार्थना करें। तो प्रे। हम धन्यवाद देते प्रभु आज की शाम के लिए प्रभु कि आपने हमसे बातचीत करी, और हम प्रार्थना करते वचन के गहराई को जाने ताकि हम आप में बढ़ते चले जाएं। आज के वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते प्रभु इस बहुत ही महत्वपूर्ण पत्री के लिए प्रभु, जिसका अध्ययन आज हमने समाप्त करा। इफिसियों की पत्री प्रभु, हम चाहते कि इन बातों को अपने जीवन के अंदर हम आत्मसात करें और अपने जीवनों को आपकी सेवा के लिए अर्पण करें प्रभु, ताकि आप बहुत आयत से हम इस्तेमाल कर सकें। इस धन्य कलीसिया पर आपकी आशीष पाए जाए। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, कुछ सूचनाएं हैं जिनको हम याद रखेंगे। ये बाइबल स्टडी कंटिन्यू होगी रोज मंडे टू सैटरडे, समय 7:30 बजे। लेकिन अगर कभी तकनीकी वजह से या किसी और कारण से देर होती है तो ये 8:30 या 9 बजे तक जरूर आ जाता है। इसको देखिए और मैं धन्यवाद देता हूँ आप सबों का जो इसके लिए अपना समय निकालते हैं। कलीसिया चर्च में हमारा ऑफिस रोज खुलता है। समय है 10:30 से 5:30 बजे तक। और पासबान यहाँ मौजूद होते हैं, आप आ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके चर्च फंड हैं, संडे ऑफरिंग है, उसको जमा करिए और चर्च की रसीद ले लें। हम निरंतर प्रार्थना करते रहे हमारे देश के लिए, हमारे देश के अगुओं के लिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपालगण, मुख्यमंत्रीगण, एमपीस, एमएलएस और पुलिस और सेना के लिए और तमाम लोगों के लिए जो हमारे देश में अधिकार रखते हैं कि परमेश्वर उन पर अनुग्रह करे, दया करे। हम प्रार्थना करें कलीसिया के अगुओं के लिए, खासकर मैथोडिस्ट चर्च के अगुओं के लिए, हमारे बिशप लोगों के लिए, खासकर हमारे बिशप सुबोध सिंह मंडल के लिए, मैडम सुचित्रा मंडल के लिए, दिल्ली रीजनल कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रेवरेंड सुजीव दास के लिए, हमारे कॉन्फ्रेंस ट्रेजरर रेवरेंड वरिंदर कुमार के लिए, हमारे ले लीडर मिस्टर अनिल नथनियल के लिए, और हमारे तमाम WCS की बहनों के लिए, लेटी के लिए प्रार्थना करें, MYF के लिए प्रार्थना करें, संडे स्कूल के लिए प्रार्थना करें, बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की कृपा दया हम पर बनी रहे। हम प्रार्थना करें हमारे नेपाली कांग्रेगेशन के लिए, हिंदी कांग्रेगेशन के लिए और इंग्लिश कांग्रेगेशन के लिए। हम प्रार्थना करें हमारे पर्वतीय कैंप की सेवा के लिए, जो एक नए रूप में अब हम उसको देखेंगे, और वहाँ पर नए लोगों को हमने अपॉइंट करा है, रिक्वेस्ट करी है कि वो कार्य करेंगे, जो हमारे नेपाली कलीसिया के पास्टर हैं और 2-3 उनके साथ वॉलंटियर्स हैं। साथ ही साथ वहाँ पर जो हमने शुरू करी ट्यूशन के क्लासेस हमारे असिस्टेंट पास्टर के द्वारा चलती रहेंगी, और महिलाओं के लिए कुछ प्रोग्राम हम कर रहे हैं, खास करके जो अनपढ़ महिलाएं हैं, इलिटरेट है, उनके लिए हमारे चर्च के अंदर बेसमेंट में हफ्ते में 2 बार प्रौढ़ शिक्षा की क्लासेस लगेंगी, और उसमें हम तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी मदद कर सकें। हम देखना चाहते हैं कि अगले 5 सालों के अंदर इस पर्वतीय कैंप में हमें फ्रूट मिले, फल मिले और परमेश्वर को महिमा मिले। हम प्रार्थना करें हमारे नए प्रोजेक्ट जो हम शुरू करना चाहते हैं, अभी तक इस पर हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन देंगे, और वह है सेक्टर 1 में जो मोहन मार्केट है, उसके सामने जो अंबेडकर कॉलोनी है, करीब 500-600 परिवार है, गरीब लोग रहते हैं, उनके बीच में प्रोजेक्ट करेंगे, और उसमें हम सोच रहे हैं आप प्रार्थना उसके लिए करें। हम चाहते हैं और भी 2-3 कार्य शुरू करेंगे आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में। यूनिवर्सिटी के काम को रिव्यू किया जाएगा, और ख़ास करके जो यहाँ JNU में काम है हमारा थोड़ा बहुत, और उसको रिव्यू किया जाएगा, और
MAT में भी हम नया काम शुरू करना चाहते हैं काउंसलिंग के लिए, तो इसके लिए भी आप प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। धन्यवाद देते प्रभु इस सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया, और हमारी प्रार्थना प्रभु कि हम आप में बढ़ते चले जाएं, और जो वचन का प्रचार आज किया गया उस पर आपके आशीष हो, ताकि हम प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित हों। और ये वचन जो हमारे हृदय के अंदर बोया गया प्रभु फलवंतित हो, इसमें फल लगे 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना। इस कलीसिया पर आपके आशीष हो, हमारे अगुओं पर आपके आशीष हो, हमारे देश पर आपके आशीष हो। इस बीमारी को, पैंडेमिक को दूर करें प्रभु, ताकि हम सब शांति से जीवन व्यतीत करें और ये पैंडेमिक नरक की आग में चली जाए, ये कोरोना वायरस नरक की आग में चली जाए। आप दया करें, अनुग्रह करें। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आवे, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम बख्श दे, और जैसे हम कुसुवारों को माफ़ करते हैं तो भी हमें कुसुओं को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह के फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदस की हिफाजत, शराकत हमें सारे के साथ इस समय और हमेशा तक होती रहे, आमीन। यीशु ही प्रभु है, प्रभु आपको आशीष दे। हमें क्वालिटेटिव चर्च चाहिए। वी आर कॉल्ड टू सी दिस चर्च बिकम्स क्वालिटेटिव, not quantitative. Jesus is not interested with people who increase the number, he is interested who increase the kingdom of God, who are useful so that his kingdom enhances. प्रभु उन लोगों के लिए आशा कर, प्रभु उनके लिए प्रार्थना कर। तो पौलुस कहता है मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे ऐसा वचन दिया जाए कि मैं समय असमय तैयार हूँ। यहाँ लिखा है ना, समय असमय, समय जो हमेशा है, असमय अभी है। ये 5 महीनों से असमय कहते हैं कि पेंडेमिक है और ये है लॉकडाउन और ये कितनी कठिन है। हम रिस्क नहीं लेना जानते, चाहते भी नहीं है। तो परमेश्वर के राज्य में जो रिस्क लेते हैं उनकी आवश्यकता है। गॉड इज सीकिंग फॉर पीपल हु टेक रिस्क फॉर द सेक ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। उनको मिशनरीज कहा गया है, इनिशिएटर कहा गया है, पायनियर्स कहा गया है, सेवक सेविका कहा गया है, जो रिस्क लेते हैं प्रभु के लिए। और जो रिस्क नहीं लेते हैं वो आराम करने वालों में चले जाते हैं। एंड जीसस इज नॉट इंटरेस्टेड अबाउट दोज हु आर लवर ऑफ ऑल प्लेजर एंड आर सो मच एप्रीहेंसिव ऑफ द सिचुएशन। It doesn't mean that we don't obey the government. We should obey, but there are times where we could give our time for the Lord and for His ministry. आप सबों को शुभ रात्रि। प्रभु आपके साथ रहे, आपकी मदद करें, प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। जय मसीह की। सबको धन्यवाद।